गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी टीचर दीप खत्री मैम आज आपको 12th स्पेशल इंग्लिश का लेसन 2 द डायमंड नेकलेस, जिसके राइटर है जीडी माओपेसेंट, पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस लेसन को 2 या 3 बार ध्यान से सुनना, फिर अपनी बुक का लेसन पढ़ना, फिर आसानी से तुम्हें लेसन समझ में आ जाए। मैं तुम्हें इसका ओवरव्यू बता रही हूँ, तो शुरू करते हैं। मैथिल्ड लाइसेल was a beautiful young lady. She was born in a middle class family. She was very ambitious. She thought that she had nothing to feel proud of. It was not possible for her to marry a rich man. So she got married to a clerk. This clerk was serving in the office of the Board of Education. She was very simple, but she was not happy because she could not live a luxurious life. She had to wear simple clothes. She had to live in a mediocre apartment with shabby walls and shabby furniture and curtains. She was jealous of her own schoolmates who were rich. She felt small and would weep after visiting them. इसका हिंदी में मीनिंग है, मैथिल्ड लाइसेल एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्त्री थी। वह एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी। वह बहुत एम्बिशियस थी और वह सोचती थी कि ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं है जिस पर वो घमंड कर सके। उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वह किसी पैसे वाले व्यक्ति से विवाह करे, और इसी प्रकार उसका विवाह एक क्लर्क से हो गया जो शिक्षा परिषद में काम करता था। वह बहुत साधारण थी, लेकिन खुश बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वह बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकती थी। वह बहुत सिंपल कपड़े पहनती थी और एक बहुत मिडिल क्लास रूम में रहती थी जिसकी दीवारें बहुत पुरानी थी, और वह अपने साथ स्कूल में पढ़ने वाली अपनी सहेलियों से बहुत ईर्ष्या किया करती थी, जो कि बहुत अमीर थी। उसके आगे है, one day her husband bought her an invitation card, but she was not happy because she had no good and beautiful clothes to wear on that occasion. So her husband arranged to buy a gown for her for 400 francs. He had saved this money to buy a gun for himself. As the date for the party came near, she looked sad again. It was because she had no jewelry befitting the occasion. She thought that she would be considered a poor lady in the party. Her husband advised her to borrow some ornament from her rich friend, Ma'am Forestier. Poor Laissel liked this suggestion. Next day, she went to her friend's house and borrowed a diamond necklace. इसका हिंदी में मीनिंग है, एक दिन उसका पति उसके लिए एक इनविटेशन
कार्ड लाया, लेकिन वह खुश नहीं थी क्योंकि उसके पास इस ओकेज़न पर पहनने के लिए अच्छे ड्रेसेस नहीं थे। इसलिए उसके पति ने 400 फ्रैंक्स का एक गाउन खरीदने का प्रबंध किया। उसने यह पैसे अपने लिए एक बंदूक खरीदने के लिए बचाए थे। लेकिन जैसे जैसे दावत का समय पास आ रहा था, लॉयसेल पुनः उदास नज़र आने लगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उसके पास इस ओकेज़न पर पहनने लायक ज्वेलरी नहीं थी। वह सोचती थी कि वह सबसे गरीब महिला होगी। उसके पति ने उसे सलाह दी कि वह अपनी अमीर सहेली मैम फॉरेस्टियर से कुछ आभूषण उधार ले ले। लॉयसेल को यह सुझाव पसंद आया। अगले दिन ही वह अपनी सहेली के घर गई और एक हीरे का हार उधार ले आई। इसके आगे है, When she attended the ball with her husband, everybody was paying attention to her. She was the prettiest of all the women present there. All the men were fascinated with her charm. They wanted to be introduced to her. All the officials of the ministry expressed their desire to dance with her. Even the minister took notice of her. She was drunk with pleasure and was filled with joy. She was greatly excited. She was very happy. She danced with passion. She forgot everything in the victory of her beauty. She felt elated over her success. She danced and danced in the hall till about 4 o'clock in the morning. When she had finished, her husband threw the modest shawl he had bought for her. After reaching home, she stood before the mirror. She wanted to see herself once more in all her glory, but she had shocked to see that there was no necklace around her neck. She cried in dismay. इसका हिंदी में मीनिंग है बच्चों, अगले दिन जब उसने अपने पति के साथ डांस किया तो प्रत्येक व्यक्ति उसी की ओर देख रहा था। वह उस पार्टी में उपस्थित सभी महिलाओं में सबसे सुंदर महिला थी। सभी उसकी सुंदरता पर मोहित थे और सभी व्यक्ति उससे परिचित या उसका परिचय पाना चाहते थे। मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने उसके साथ डांस करने की इच्छा प्रकट की। वह प्रसन्नता में मदमस्त हो गई और मस्ती में डांस करने लगी। वह अपनी सुंदरता के विजय में सब कुछ भूल गई। वह अपनी सफलता पर बहुत उल्लासित हो रही थी। वह सुबह 4 बजे तक बड़े कमरे के हॉल से निकली। उसके पति ने उस पर शॉल डाल दिया। घर पहुंचने के बाद वह शीशे के सामने पुनः खड़ी हो गई और वह स्वयं को एक बार पुनः गौरव से देखना चाहती थी, परंतु यह सब देखकर वह सन्न रह गई जब उसके गले में उसे हार नहीं दिखा और वो निराशा में चिल्लाई। Mathilde informed her husband that she had lost the necklace. Her husband was bewildered. They looked for the necklace everywhere, but all in vain. Mr. Loiser went out to search it on the way. She was waiting in her ball dress. She had no more strength left to go to bed. Her husband returned at about 7 o'clock, but he could not find the necklace anywhere.
मैथिल्ड ने अपने पति को बताया कि वह हीरे का हार उससे खो गया है। उसका पति भी बहुत डर गया। उसने उस हार को घर के हर तरफ खोजा, लेकिन सब बेकार था। मिस्टर लॉयजर रास्ते में हार खोजने के लिए निकल पड़े। वह उसका नृत्य की पोशाक पहने इंतज़ार करने लगी। उसके पास सोने जाने की हिम्मत भी नहीं थी। लगभग 7 बजे जब उसका पति वापस आया, किंतु उसे वह हार कहीं भी नहीं मिला। ऑन द एडवाइस ऑफ हर हस्बैंड, Mathilde wrote a letter to her friend, Madame Forestier, saying that the clasp of the necklace was broken, so necklace had been sent for repair. In this way, they got some time to buy another diamond necklace. After going from shop to shop, at last they found a necklace similar to the lost one. The shopkeeper demanded 40,000 francs as its price. The bargaining finally was settled for 36,000 francs. Mathilde's husband had only 18,000 francs with him. He borrowed the remaining 18,000 francs on high rate of interest. They bought the necklace and sent it to Madame Forestier. She did not care to see. मैथिल्ड ने अपने पति की सलाह पर अपनी सहेली को एक पत्र लिखा कि हार का हुक टूट गया था, इसलिए उसे मरम्मत के लिए भेज दिया था। इस प्रकार उन्हें एक दूसरा हार खरीदने के लिए समय मिल गया। एक दुकान से दूसरी दुकान पर हार को ढूंढते हुए अंततः उन्हें खोए हुए हार जैसा एक हार मिल गया। दुकानदार ने इस हार की कीमत 40,000 फ्रैंक मांगी और बार्गेनिंग करने के बाद 36,000 फ्रैंक्स पर सौदा तय हुआ। मैथिल्ड के पति के पास कुल 18,000 फ्रैंक थे। बाकी बचे 18,000 फ्रैंक उसने ऊंची ब्याज दर पर उधार ले लिए और वह हीरे का हार मैम फॉरेस्टियर को भेज दिया। मैम फॉरेस्टियर ने उस हार को देखने की भी परवाह नहीं। आगे है, नाउ अ लाइफ ऑफ हार्डशिप began for Mathilde and her husband. They had to pay off the debt of 18,000 francs. For this, they had to shift to a very cheap room. They removed the servant. Now Mathilde did the household work herself. She fetched water, washed the floor of the house, utensils and dirty clothes all by herself. She did shopping by herself. Her husband worked in the evening and late at night to pay back 18,000 francs. They had to borrow. They had paid the entire amount at the end of 10th year. But Mathilde had to pay a heavy price for it. She looked like an ordinary woman. She looked old now. She was now a tough and rough woman. अब मैथिल्ड उसके पति के लिए जीवन बहुत कठिन हो गया था। उन्हें 18,000 फ्रैंक का कर्ज चुकाना था। इसके लिए उन्हें एक छोटे और सस्ते कमरे में रहना पड़ा। उन्होंने अपना नौकर भी हटा दिया। अब मैथिल्ड घर के सारे काम स्वयं करने लगी और पानी भरना, कमरे का फर्श साफ करना, बर्तन धोना, गंदे कपड़े धोना तथा बाकी सारे कार्य भी स्वयं करने लगी। वह खरीदारी भी स्वयं ही करती थी। उसका पति शाम को तथा देर रात तक
उधार लिए हुए 18,000 फ्रैंक को चुकाने के लिए कठिन परिश्रम करने लगा था। उन्होंने 10 वर्ष में के अंत तक सारा कर्जा चुका तो दिया, लेकिन इसके लिए मैथिल्ड को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वह एक सामान्य औरत लगने लगी थी और शायद बूढ़ी भी दिखने लगी थी, और अब इसके साथ ही वह कठोर, कर्कश और हठी औरत बन गई थी। One Sunday, Mathilde went out to take a walk. She saw Madame Forestier there and went up to her. Madame Forestier was surprised to see her so much changed. Mathilde told her that she had to lead a very tough life and it was because of her. Madame Forestier was puzzled to hear it. Then Mathilde explained to her how she had lost her diamond necklace. She had to buy another for 36,000 francs to replace it. It had taken them 10 years to pay for it. Madame Forestier was moved to hear Mathilde's tragic story. She revealed to Mathilde that her necklace was worth only 500 francs and the diamonds were artificial and not real. एक रविवार मैथिल्ड सैर के लिए बाहर निकली। उसने मैडम फॉरेस्टियर को वहाँ देखा और उसके पास की। मैडम फॉरेस्टियर उसमें आए हुए बड़े बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब मैथिल्ड ने उन्हें बताया कि वह बहुत कठिन जीवन व्यतीत कर रही थी और ये सब उन्हीं के कारण हुआ। मैम फॉरेस्टियर यह सुनकर अचंभित रह गई कि कैसे। तब मैथिल्ड ने उन्हें विस्तारपूर्वक बताया कि किस प्रकार उनके हीरे का हार खो गया था और उसने उसके स्थान पर 36,000 फ्रैंक का एक अन्य हार खरीदा और उस कर्ज को चुकाने में 10 वर्ष लग गए। मैम फॉरेस्टियर उसकी दुख भरी कहानी सुनने लगी। तब उसने मैथिल्ड को बताया कि वह हार मात्र 500 फ्रैंक का था और उसमें लगे हीरे बनावटी थे, ना कि असली। तो बच्चों, आपकी ये जो स्टोरी है यहाँ ख़त्म होती है और कॉम्प्रिहेंशन की तरफ चलते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोट कर लेना और उसे याद भी कर लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना। अभी तक इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक घर में रहना, सुरक्षित रहना। थैंक यू।